Hello dear students, welcome back to the new class. Today we will start our lecture with the discussion of the first law of thermodynamics. Okay. Now in order to understand what the first law of thermodynamics, okay, we are considering one container. So here we have a container C and some fluid. Okay, fluid का मतलब क्या है? It may be a liquid or it may be a gas. Okay, so this may be a liquid or it may be some gas. So this liquid or a gas is filled inside this container. Okay, and there is one movable system known as the piston is placed inside this container C. Correct? Now, what we are going to do? We are going to supply some heat energy to this system, right? And that heat energy is D. जब हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी हीट कंटेंट में कुछ डिफरेंस आएगा एंड दैट इज डी क्यू. अब ये जो एनर्जी हमने सप्लाई की है ये एनर्जी दो पार्ट्स में यूज होगा. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? सो इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसमें भी अ गैस मॉलिक्यूल और अ लिक्विड मॉलिक्यूल दे विल गेन दिस एनर्जी डी क्यू. इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी and these molecules will start moving with higher and higher velocity. You are getting? So therefore, there will be some increase in the internal energy. Bachcho, what is du here? Du is the increase in the internal energy. And at the same time, this gas molecule will exert some pressure on this piston. So क्या होगा? ये piston जो इस पोजीशन पे है, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. पिस्टन की मूवमेंट हो गई तो इंटरनल वॉल्यूम विल चेंज. इंटरनल चेंज इन वॉल्यूम इज व्हाट? dV. Okay, so remaining part of dq will be used to do some work, dw. Okay, so mathematically हम ये लिख सकते हैं that the value of dq is equals to du plus dw. You are getting? dq क्या है बच्चों? It is the heat energy supplied. What is du? du is the increase in the internal energy and dw is the work done. ओके, अब ये वर्क किसके अगेंस्ट किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे इस पिस्टन के अपर साइड में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन ये लिक्विड मॉलिक्यूल इस पिस्टन को उस प्रेशर के अगेंस्ट डिस्प्लेस करना चाहते हैं. सो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So we can modify this equation as dq is equal to du plus dw can be replaced by pressure into change in volume. You are getting? Okay, the piston will displace from position 1 to position 2 and hence there will be change in the volume dV, and due to change in the volume dV there will be some work done. Okay, तो what is the first law of thermodynamics? कि किसी भी सिस्टम को जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं that is dq is utilized in two ways. Number one, du, which is the increase in the internal energy, and second, dw, which is the work done. This is clear, everyone? That's great. Now, we will talk about specific heat. The proper definition and the formula we will discuss in the next slide. Okay, but here we will try to understand the classification. देखिए specific heat जो है वो दो types की होती है. Number one is a molar specific heat and number two is the principal specific heat. Now both these types are further classified into two types. So, molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume. तो देखिए notation wise molar specific heat is denoted by the letter capital C. You are getting? And the principal specific heat is denoted by the letter small c. इसके लिए हमने छोटा सी ये सिंबल यूज किया है. Okay, and molar specific heat के लिए we will use capital C as the notation. So, molar specific heat at constant pressure is denoted as capital C suffix v, and molar specific heat at constant volume is denoted by capital C suffix v. Same way, the principal specific heat at constant pressure we will denote this by छोटा c suffix v, and molar specific heat at constant volume we will denote this by छोटा c suffix v. तो याद रहे बच्चों कि मोलार के लिए हमें कैपिटल नोटेशन यूज करना है और प्रिंसिपल के लिए हमें स्मॉल नोटेशन यूज करना है. This is fine. There is some relation between the two that we will discuss in the next slide. But right now, specific heat is of two types, molar and principal.
Okay, then molar is again at two type, at constant pressure, at constant volume. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलार के लिए हमने यूज किए हैं कैपिटल नोटेशन और प्रिंसिपल के लिए हमने यूज किए हैं स्मॉल नोटेशन। इज फाइन, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट अस डिस्कस देयर डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दैट्स अ मोलार। अब मोलार है तो नोटेशन क्या यूज होगा, कैपिटल सी। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सी सफिक्स। Okay, so let's try to design the formula for C suffix V, and let's see what the formula is. Okay, the quantity of heat required. Okay, a quantity of heat is denoted by what? dq to raise the temperature. अब ये heat हमें क्यों सप्लाई करनी है, ताकि हम टेम्परेचर को रेज कर सकें। किसका टेम्परेचर रेज करना है, तो 1 मोल ऑफ गैस का। ओके, तो वी हैव टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, n इज द नंबर ऑफ मोल। टेम्परेचर कितने से रेज करना है, आइदर 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। दैट चेंज इन द टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय व्हाट, dt। ओके, व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। देखिए डेफिनेशन रीड करके हमने फॉर्मूला डिजाइन किया, आप उल्टा भी कर सकते हैं। फ्रॉम द फॉर्मूला यू कैन डिजाइन द डेफिनेशन। लेट्स सी हाउ। व्हाट इज Cv everyone? It is the molar specific heat at constant volume is defined as the dq। dq क्या है, amount of heat energy required, इसलिए so that you can change the temperature by what amount, 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन किसका, 1 मोल ऑफ गैस का। Same way, what will be the definition of molar specific heat at constant pressure? अब देखिए मोलार है तो आई एम यूजिंग द नोटेशन कैपिटल सी, कांस्टेंट प्रेशर है तो सी सफिक्स यू आर गेटिंग। फिर से दिस इज आल्सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड व्हिच इज dq to raise the temperature, that is dt किसका, 1 मोल ऑफ गैस का। कितने से, आइदर 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। फर्स्ट में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, सेकंड में हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है। गेटिंग। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द यूनिट फॉर दिस। नाउ dq is a form of energy and the unit for the energy is joule। you are getting, n is the number of mole. Okay, so this one is number of mole and dt is the temperature which we measure in the unit of kelvin। Okay, same way the unit for Cp will also be joule per mole kelvin। This is fine everyone। Okay, these are the SI units of molar specific heat। Fine, once we are done with molar we can discuss the definition of principal specific heat। अब देखिए प्रिंसिपल है, इसका मतलब हमें छोटा सी ये नोटेशन यूज करना है। ओके, फर्स्ट वन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो छोटा सी सफिक्स v, सेकंड एट कांस्टेंट प्रेशर तो छोटा सी सफिक्स v। बात आ रही है समझ में। अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे भी dq आया। ओके, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस। यहाँ पे डिफरेंस है, प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था 1 मोल ऑफ गैस। ओके, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट मास ऑफ गैस। तो मास है इसीलिए हमने m लिखा। अब हमें इसका टेम्परेचर रेज करना है कितने से, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। सो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई बाय dt। यू आर क्लियर। सेम वे यहाँ पे भी हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस। देखिए बच्चे, यूनिट मास ऑफ अ गैस कितने से रेज करना है, आइदर 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से। बट दोनों में फर्क क्या है, इन द फर्स्ट केस वी आर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट एंड इन द सेकंड केस वी आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। यू आर क्लियर विद दिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर यूनिट। ओके, तो यूनिट क्या होगा, देखो dq है, एनर्जी है तो यूनिट विल बी जूल। ओके, m is the mass, mass का यूनिट क्या होगा, kg, and temperature is measured in the units of Kelvin। Same way the unit for Cp will also be joule per kg Kelvin। Is this fine for you all? Okay, very nice। So we have discussed the specific heat, the types of specific heat in detail along with their formula as well as the unit। Okay, that's great। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि is there any relation between the two? Okay, yes, and now we are going to discuss the relation between molar and the principal specific heat। Is this fine? Okay, now I will just write the formula over here. That's the molar specific heat. Molar specific heat
the molecular weight of a gas, molecular weight of a gas multiplied by the principal specific heat. You are clear with this? देखिए रिलेशन क्या है बच्चों? मोलर स्पेसिफिक हीट is equals to molecular weight of a gas multiplied by principal specific heat. मैथमेटिकली देखें तो कैपिटल C suffix P, okay, is a molar specific heat at constant volume is equals to molecular weight m naught multiplied by small c suffix p, which is the principal specific heat at constant volume. Same way, I can have one more relation that capital C suffix P क्या है बच्चों? Molar specific heat at constant pressure. इसका फॉर्म बनेगा m naught multiplied by small c suffix P. You are clear with this? So this gives me the relation between the molar specific heat and the principal specific heat. Is this fine? Any difficulty, anyone? No? That's great. Now, look at the next slide. What's the title given? The title is Mayer's relation. What's the title, everyone? Mayer's relation. Okay, now try to understand what the Mayer's relation is. Let us consider 1 mole of perfect gas. तो हमें क्या कंसीडर करना है बच्चों? 1 mole of a perfect gas is enclosed in a cylinder which is fitted with a frictionless, weightless, airtight, movable piston. देखो piston कैसे होना चाहिए? Frictionless, weightless, airtight and movable. You are getting? Okay, so simple सा कंस्ट्रक्शन है. हमें क्या करना है? हमें एक कंटेनर लेना है, यूजुअली अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, एंड इस कंटेनर के अंदर हमें एक पिस्टन को फिट करना है, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज नोन एज अ पिस्टन. यू आर गेटिंग? जैसे हमने डायग्राम 1 में भी डिस्कस किया था. ओके, पिस्टन जो है इट शुड बी फ्रिक्शनलेस, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होगा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये पिस्टन इजीली अप या डाउन नहीं हो पाएगा, एंड हेंस द पिस्टन मस्ट बी फ्रिक्शनलेस. इट शुड बी वेटलेस ताकि इजीली मूव हो सके, एयर टाइट एंड मूवेबल. एयर टाइट क्यों होना जरूरी है? ताकि गैसेस साइड से निकल ना जाए. क्लियर? अब देखिए आगे क्या कहा उन्होंने कि कैपिटल पी, कैपिटल वी एंड टी विद द प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ अ गैस. तो इसके अंदर हमें क्या फील करना है? इसके अंदर हमें फील करना है गैस, ओके, जिसका प्रेशर है पी, वॉल्यूम है वी और एब्सोल्यूट टेंपरेचर है टी. ओके, लेट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो बच्चों ध्यान देना, गैस को कौन सी कंडीशन पे हीट किया गया है? कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, दैट मींस सी सफिक्स वी वाली कंडीशन है. And dq1 is the heat given to the gas for the purpose. Now in this case all the heat supplied is used for increasing the internal energy. अब ये क्यों वो भी समझ लेते हैं. देखिए Cv का फॉर्म क्या है बच्चों? तो Cv का फॉर्म है dq. अब हमने कितना हीट दिया? dq1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल, 1 मोल लिया है देखो, ओके, मल्टीप्लाइड बाय dp. You are clear with this? Okay. Now remember one thing कि यहाँ से हम dq1 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? dq1 का फॉर्म बनेगा cv मल्टीप्लाइड बाय dv, not dv, just a minute. Okay, it will be cv multiplied by what? dt, right? But student, do you remember first law of thermodynamics जो कहता है dq is equals to du plus dw. dw को हमने क्या लिखा है? d प्रेशर इनटू डेल्टा v. अब हमें करना ये है कि हमें इस पिस्टन के ऊपर 2 क्लैंपर्स लगाने हैं, क्लैंपर्स लगाने हैं. ये क्लैंपर्स क्या करेंगे? पिस्टन को लॉक कर देंगे. अब पिस्टन ऊपर नहीं जा पाएगा, और अगर पिस्टन ऊपर नहीं गया तो उसका चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? 0 होगा. और अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो भी 0 बन जाएगा. इसका मतलब dq की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? इट इज इक्वल्स टू d. दिस इज क्लियर? लेट मी कॉल दिस एज रीजन नंबर 1. Any difficulty, anyone? No? That's great. Now let's have a look at the second point. What is said in the second point? Now the gas is heated at constant pressure. देखो first of all हमने constant volume पे इसको हीट किया था, अब हम इसे हीट करेंगे constant pressure condition so that its temperature rises by dt. But in the second case how much energy we are supplying? dq को. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए फिर से वही पिस्टन है हमारा, ओके, कंटेनर भी वही है, तो कंटेनर के ऊपर हमने ये पिस्टन लगा दिया है, ओके. लेकिन अब यहाँ पे हमने क्लैंपर्स नहीं लगाए हैं,
और अगर क्लैंपर्स नहीं लगाओगे तो ये पिस्टन इजीली ऊपर जा सकता है। दैट मीन्स द चेंज इन वॉल्यूम विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब वर्क डन विल आल्सो नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब बच्चों बताइए मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीपी। सीपी का फॉर्म हम लिखते हैं डी क्यू सफिक्स टू लिखना। कितने मोल्स हमने यूज किए हैं, 1 मोल, एंड द चेंज इन द टेम्परेचर इज dt। You are getting? Okay, so therefore what we can write, we can write dq2 is equals to c suffix p multiplied by dt। ओके, लेकिन ये किसके बराबर होगा, cp dt, इट इज इक्वल्स टू du प्लस dt या dw। so therefore we can write कि dq2 is equals to internal energy is also changing and the external work will also take place। Is this fine everyone? Yes, I will call this as result number 2 and I will call this as result number 3। So I found total 3 results in this page. Correct? Now let's have a look at the next page. What is said over here? In this case, the heat supplied by the gas is used for the two purposes. Okay, part is used to increase the internal energy and part is used to do some external work। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो भी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो दो किस्तों में बढ़ जाएगी। ओके, वट एवर एनर्जी वी आर सप्लाइंग विल बी यूटिलाइज्ड इन टू वेज। करेक्ट ना? ओके, सो द फर्स्ट लॉ सेज के dq is equals to du प्लस dw। अब बच्चों बताइए कि इक्वेशन 1 से हमें du का रिलेशन क्या मिला है, तो du का रिलेशन मिला है हमें cv dt। यू आर गेटिंग? एंड जो dq है तो उसका रिलेशन क्या मिलेगा हमें, इट इज cp इंटू dt। फाइन, तो लेट्स प्लग इन ओवर हियर। तो dq के बदले हमें लिखना है cp मल्टीप्लाइड बाय dt और du के बदले हमें लिखना है cv मल्टीप्लाइड बाय dt और जो एक्सटर्नल वर्क है उसे फिलहाल हमने लिखा है dw। बात आ रही है समझ में? यस। अब क्या करो, dt वाले टर्म्स एक तरफ पुल करो, तो cp minus cv, what I can pull common, I can pull dt common। Is this clear everyone? Okay, but यहाँ पे बचेगा dw, तो dw को हम लिख सकते हैं pressure into change in volume। but if you remember, okay, pv is equals to nRT, तो इसे हम लिख सकते हैं n, n का वैल्यू कितना है 1, hence I can write r multiplied by dt। ऐसे क्यों किया, बिकॉज नाउ आई कैन कैंसल आउट दिस dt एंड dt फैक्टर। तो अगर dt फैक्टर्स को कैंसिल कर दे तो बच्चों देखिए यहाँ पे यू विल हैव द रिलेशन माइनस cv is equals to capital R। Is this clear everyone? Okay, the relation will be cp minus cv is equals to capital R and this is known as a Mayer's relation। What this relation is known as everyone? It is known as a Mayer's relation। बात आ रही है समझ में? यस। ओके, नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेट्स सी हाउ वी कैन मॉड्यूलेट दिस इक्वेशन। देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे मॉड्यूलेट किया जा सकता है। आई कैन राइट दिस एज कैपिटल M इनटू, या फिर ये मॉलिक्यूलर वेट है, इनटू छोटा cp माइनस फिर से मॉलिक्यूलर वेट m नॉट इनटू छोटा cv इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो बच्चों कैन वी रीराइट द इक्वेशन एज छोटा cp माइनस छोटा cv इज इक्वल्स टू r डिवाइड बाय m नॉट। दिस इज क्लियर एवरीवन? ओके, अब बच्चों देखिए इन दो रिलेशंस का फर्क क्या है। ओके, तो ये है रिलेशन नंबर 4 और ये है रिलेशन नंबर 5। रिलेशन नंबर 4 में हमारे नोटेशन कैपिटल है, तो ये कौन सी स्पेसिफिक हीट हुई बच्चों, मोलार। और रिलेशन नंबर 5 में हमने जो लेटर्स यूज किए हैं वो है स्मॉल सी एंड स्मॉल सी। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ बच्चों, दिस इज द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो अगर मोलार का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस आएगा कैपिटल आर, और अगर प्रिंसिपल का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस होगा आर डिवाइड बाय एम नॉट, वेयर एम नॉट इज द मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज क्लियर एवरीवन? पक्का? ओके, यहाँ पे और एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये दो फॉर्मूलाज कब यूज होते हैं। So these two formulas are used if the heat and work are in the same unit। अगर वर्क एंड हीट दोनों का यूनिट सेम तो ही हम रिलेशन नंबर 4 एंड 5 को यूज करेंगे। तो अब डाउट ये है कि अगर दोनों के यूनिट्स अलग हो तो क्या। ओके, तो लेट्स सी।
suppose if the heat is measured in the units of calorie, ओके, और जो वर्क डन है उसे अगर मेजर किया जाता है ओके, ये डिफरेंस याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हम लिखेंगे कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इज इक्वल्स टू आर ओवर जे। कैपिटल सी मतलब मोलर का डिफरेंस लिया जा रहा है, फाइन। और अगर छोटा सीपी माइनस छोटा सीवी लिखते हैं तो फॉर्म क्या बनेगा बच्चों, इट इज आर डिवाइड बाय एम नॉट मल्टीप्लाइड बाय जे। तो हमें करना क्या है कि 4 एंड 5 को जो आरएचएस है उसमें जे से डिवाइड कर देना है, ताकि हमें और दो इक्वेशंस मिले, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। अब ध्यान रहे कि 4 एंड 5 कब यूज करना है, अगर हीट और वर्क का यूनिट सेम हो, और अगर दोनों का यूनिट अलग हो तो यू विल यूज आइदर 6 या 7। ओके बच्चों ध्यान देना, 4 एंड 6 में हमने मोलार स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस लिया है, 5 एंड 7 में हमने प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस लिया है। अब शायद से आपके माइंड में एक कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज दिस जे। ओके, सो दिस जे इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर एवरीवन, इस जे को क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। दिस इज फाइन फॉर एवरीवन, यस, आई होप ऑल द पॉइंट्स, ऑल द फॉर्मूलाज आर क्लियर। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेरी केयरफुली ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम ताकि कॉन्सेप्ट हमारी और स्ट्रांग बिल्डअप हो जाए। Given the values of the two principal specific heat, बच्चों ध्यान देना, अब यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए लेटर एस यूज किया है, डोंट गेट कंफ्यूज, वी विल यूज स्मॉल सी ओनली, ओके, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, फाइन। नाउ यूनिट देखिए उनका क्या है, कैलोरी केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, also कैलोरी केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स for the hydrogen gas. Find the value of J if the universal gas constant is this much. ओके, अब एक सिंपल सी बात है, हमें जो फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, दैट फॉर्मूला विल बी, आई विल राइट द फॉर्मूला हियर, स्टूडेंट, इट इज छोटा cp माइनस छोटा cv इज इक्वल्स टू r डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय j। बच्चों बात आ रही है समझ में, वेरी गुड। हमें ढूंढना क्या है, तो हमें ढूंढना है j, तो j को आइसोलेट करते हैं, कैसे करना है, वी विल राइट दिस एज r डिवाइड by m naught multiplied by छोटा cp minus छोटा cv। This is clear everyone? Okay, that's great. Now what to do? अब हमें वैल्यूज को प्लग इन करना है। अब देखिए कौन से गैस की बात कर रहे हैं, they are talking about a hydrogen gas, and for hydrogen gas the value of m naught is equals to, okay, now I will plug in all the values, I'll do the calculation here। G is equals to, in the denominator we have m naught, m naught कितना है बच्चों 2। अब Cp माइनस Cv का डिफरेंस देखिए, 3400 माइनस 2400, yes the difference will be 1000, so I will write the difference as 1000। in the numerator we will plug in the value of R which is 8300। this is fine everyone, yes, okay, that's great। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 10 का पावर कितना होगा, 3 होगा, 10 का पावर कितना होगा, 3 होगा, right? So this is 10 raised to 3, and here I can write this value as 83 into 10 to the power 2 divided by 2 into 10 to the power 3। अब 83 को 2 से डिवाइड करो, so 2 4s are 2 1s are and 5 प्लस 3 ऊपर जाए तो माइनस 3, मतलब यहाँ पे बना 10 रेज टू माइनस, इसका मतलब जे का वैल्यू कितना बनेगा बच्चों, 4.15। ओके, एंड द यूनिट फॉर दिस विल बी जूल पर कैलोरी। आई होप द कैलकुलेशन इज क्लियर, पक्का, दैट्स ग्रेट। Look at the next problem. Okay, what is said in the next problem? The difference between the two molar specific heat of gas is 8000 joule per kg inverse Kelvin inverse। अब हमें डिफरेंस दिया गया है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द टू मोलार, मोलार है तो कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv, याद रहेगा। और ये डिफरेंस कितना प्रोवाइडेड है, द डिफरेंस इज 8000 जूल पर kg Kelvin।
This fine everyone. Okay, if the ratio of the two specific heat, अब दो specific heat का ratio भी हमें दिया गया है, कितना ratio है, तो Cp over Cv is given 1.65. अब शायद से आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि हाउ टू डिसाइड ये Cp over Cv है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि Cp की जो वैल्यू है वो Cv से ज्यादा होती है, और एक फ्रैक्शन का वैल्यू देखो 1 से ज्यादा है, फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा कब आता है, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग Cp over Cv is equals to 1.65. अदरवाइज कुछ बच्चे यहाँ पे आर्गुमेंट कर सकते हैं कि व्हाई नॉट Cv over Cv। अब डिफरेंस समझ में आया कि Cp की वैल्यू हमेशा Cv से ज्यादा होती है, और इसीलिए हमने रेशियो क्या लिया है, Cp divided by Cv as 1.65. Is fine everyone? Okay, that's great. Now what I will do, I will call this as result number 1. Okay, अब from this equation can we say that कि Cp की जो वैल्यू है वो होगी 1.65 multiplied by Cv, you are getting, and let me call this as result number 2. इसे हम मार्क करेंगे result number 2। आया समझ में? Okay, now what to do next? Very simple, I will substitute result number 2 back into result number 1. Okay, हम result number 2 को plug in करेंगे result number 1 पे। Okay, so let me substitute result number 2 in result number 1. So what you will have? You will have 1.65 times of Cv minus Cv is equals to 8000. Okay, difference क्या आएगा बच्चों? This will be 0.65 multiplied by Cv is equals to 8000. Okay, हमारा डिफरेंस क्या है? कैलकुलेट द टू मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ से हम Cv की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे? 8000 को कर दो डिवाइड 0.65 से, या फिर 65 into 10 तो यू कैन सिंप्लीफाई दिस, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर विल बी 12307.69 and the unit will be joule per kg Kelvin. बच्चों हमें ये किसका आंसर मिला? This is the answer for Cv. Now once you get the answer for Cv, you can find the answer for Cv. कैसे? Very simple. देखो Cp इक्वेशन नंबर 2 से Cp क्या है? 1.65 into Cv। Cv की बदले क्या वैल्यू लिखना है? 12307.69। इसको अगर ऑपरेट करोगे तो Cp का वैल्यू आ जाएगा 20,307.69 with the unit as per calculation clear for everyone. Okay, so this is how we can get the value of Cv as well as Cp. Okay, so a quick recap, we have discussed today the first law of thermodynamics, and we have discussed the specific heat. There are two types of specific heat. Number one is molar specific heat, जिसके लिए हमने capital notation यूज की है, और नंबर टू है principal specific heat, जिसके लिए हमने small notation यूज की है. We have studied their formula as well as units. Then we discussed the relation between the two, that is molar is equals to molecular weight into principal specific heat. Then we talked about the Mayer's relation. Okay, and from the Mayer's relation we have discussed certain numericals based on the principal specific heat as well as the ratio of the two. अब बच्चों एक बात ध्यान रखें कि ये जो Cp over Cv का रेशियो है, this ratio is denoted by the symbol gamma. Okay, this is denoted by the symbol gamma, not a gamma, you will pronounce this as a gamma. Okay, and this gamma is known as adiabatic constant, which is the ratio of the two specific heat, that is Cp over Cv. This is clear for everyone? Okay, that's great.